Okay, good evening, everyone. So let's begin our session today on current affairs. So let me first understand from you what all you've been keeping track of, right? And then we'll cover some important stories. Yes, go ahead. Sir, Elon Musk merged his two companies, SpaceX and XAI. Elon Musk merged Grok. XAI and SpaceX आ रहा था. No, XAI is the Grok part of it, not ओ, X completely, right? अच्छा. Hmm. Okay, so what benefit does he expect to derive out of that? Sir, I think it was something like setting data centers in the space to Hmm, utilize sun, solar energy. It was a hmm, whole hmm, thing that hmm. all the data centers should be in the space to ठीक है save electricity and energy and to utilize sun's energy हम्म, ठीक है चलो and all right then all okay that. fair enough what else Sir, it could also be for the higher valuation because I think he was planning to go public with the companies later this year. hmm. To add value to To whatever basically like hmm. increase the overall value offering. Hmm. Correct could be yes yes Yukti So recently, our PM also had a meeting with like Malaysia PM, and they Hmm. discussed about defense, social security, and there was one other thing. India I'm Malaysia forgetting. Semiconductor. hmm. Semiconductors. Yes. मीट मीट ठीक है तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में Yeah. देखेंगे इसमें बहुत सारे पिलर हैं उसमें से दो चार इंपॉर्टेंट से देख लेना देयर आर 16 pillars they have identified okay so of course one is semiconductor one is strategic cooperation for security the other would be बहुत सारे हैं अभी देख लेते हैं उसको ना उसमें से जो चार पांच कर लेंगे व्हाट एल्स Sir, even our advisor Ajay Dawal also meet with Canada's counterpart. They discussed something related to defense and drug trafficking was one of the major issues they addressed. ठीक है एनएसए ऑफ कनाडा ठीक है और बताइए सी अभी हमने Oh, इंडिया यूएस ट्रेड डील भी बात कर सकते हैं जो फ्रेमवर्क आ गया है ना बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग दे हैड जस्ट indicated things and these things have become more concrete over the last few days so surely India US trade deal framework we can discuss because this is going to be right a big point of Yeah. discussion uh, Now we have some sort of clarity about the agriculture products in this deal, correct because it was some like controversy or debate over these. Hmm. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट वी शुड नो what was it earlier what is it now whether it is beneficial for us it is more beneficial for them how are different people reacting to it how are farmers reacting to some clarity that has been issued on this right so all those things we will have to see what else sir, election in Bangladesh on 12th. election in Bangladesh on 12th fair enough तो इसका बताइए क्या है मतलब what is who all are fighting the elections what is the scenario what does it mean for us uh, Sir, like three major players are there. BNP, Bangladesh Nationalist Party. hmm. Mohammed Yunus, I think he was the leader. नहीं 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 No, नहीं मोहम्मद यूनुस तो वो है. वो तो केयर टेकर वो केयर टेकर वो तो लाइक अभी गवर्निंग बीएनपी बॉडी है. की जो लीडर थी ना खालिदा जिया हाँ, उसका बेटा. उसका बेटा तो शी पास्ड अवे यस सर. लास्ट मंथ राइट तो उसका बेटा जो है वो इसमें है उसम तारिक रहमान I हाँ, forgot तारिक रहमान. यस सर. तारिक रहमान तो वो अभी तक इधर बाहर बैठा हुआ था यूएस में तो अब वो आ गया है राइट ही हैज टेकन ओवर द बैकडोर ऑफ बीएनपी राइट बीएनपी हैज बीन वन ऑफ द मेजर पार्टीज ओके इसमें यस आपको सर. और देखो एक एडब्ल्यूएल थी अवामी लीग
इसका क्या हुआ? सर इसको इलेक्शन कंटेस्ट करने नहीं दे रहे इस बार, हाँ, शेख ये हसीना पार्टी। यही शेख हसीना की पार्टी थी, राइट। एंड शेख हसीना के नाम पे तो उन्होंने पर्चे फड़ा रखे हैं मारने के, राइट, डेथ सेंटेंस वगैरह दे रखा है। सो they are not allowing these people to fight the elections because they have been there in the power for a very long time. ये शेख हसीना 4 बार बन चुकी थी और उसने भी एक तरह से अथॉरिटेरियन टाइप से काम चालू कर दिया था, तो लोगों ने उसको अगस्त 2024 में भगा दिया वहां से। एज वी नो शी इज हाइडिंग इन इंडिया। they've been asking us to extradite her. We have not done. And so far the caretaker government by Mohammad Yunus has been continuing, right? तो इनको उन्होंने मना कर दिया कि भैया आप लड़ोगे नहीं, अवामी लीग वाले। फिर और तीसरी कौन है? सर एक जमात जमात करके एक छोटी इस्लाम। पार्टी। यस। यस सर। तो एक जमात करके है, तो वो छोटी मोटी पार्टी है, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल आर एक्सपेक्टिंग these guys to win. So yes, युक्ति। Sir, I have just one doubt. वो जो बीच में recent news आ रही थी like about the death of Omar Hadi, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते कौन हैं? थे फिर वो तो अच्छा, सलमो सर, वो जो एक स्टूडेंट लीडर था। yes, yes. हाँ वो हाँ, आई like फॉरगॉट द नेम। does करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि वेयर डज ही फिट इन ऑल ऑफ दिस। बताइए, डज एनीवन हैव आंसर? yeah वो जो एक स्टूडेंट लीडर मर गया, जिसके को लेके काफी एंटी इंडिया सेंटिमेंट प्रिवेल हो गया, और उसके बाद में फिर एज वी नो जो आईपीएल का भी कंट्रोवर्सी हुई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट व्हिच इज प्रेवलेंट अमंग द यूथ पीपल पर्टिकुलरली ऑफ बांग्लादेश। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट गाय? यस, बताइए। तो वो क्या करता था, क्यों उसके मरने से? तो उस्मान हादी था वो, right? तो उस्मान हादी था, एंड बेसिकली see he was kind of coming up very well as a as a maybe futuristic leader। काफी यंग था वो, और काफी लोगों को, जैसे यंग जनरेशन जो थी वो उसके पीछे थी, और वो सोच रहे थे कि वो अभी वो किसी पार्टी से अफिलिएटेड नहीं था। ही वॉज नॉट अफिलिएटेड टू बीएनपी और एनी पार्टी, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट ही था, राइट। तो उसको मरने से काफी सेटबैक लगा इनके मूवमेंट को, स्टूडेंट मूवमेंट को। इसके ऊपर हमने डिटेल में कवर किया था लॉन्ग बैक इन आवर दिसंबर में किसी इन वन ऑफ द करंट अफेयर सेशन। सो इफ यू वांट यू कैन रिव्यू दैट। ओके, सो बट दैट पर्सन एनीवे इज डेड। सो अब तो रात गई, बात गई। तो दैट्स हाउ इट इज। Okay, so Bangladesh elections, we should be keeping very close watch because India-Bangladesh relations have been going bad to worse, right? And recent trade agreements जो हमारे हुए हैं, उससे बांग्लादेश को काफी नुकसान है, because as we saw that in India EU FTA, Bangladesh was the one who was the incumbent in textiles, right? They had a great market share, $30 billion का वो बेचते थे, $36 billion का, और उनको लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस मिला हुआ था, तो उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगता था। इंडिया के ऊपर 8 to 12% टैरिफ लगता था टेक्सटाइल पे, जो कि अब 0 कर दिया गया है। प्लस 27 से इनका लीस्ट डेवलप कंट्री वाला स्टेटस भी रिवोक हो जाएगा, तो दे स्टैंड टू लूज। सिमिलरली इन ई इंडिया यूएस ट्रेड जो चल रहा है डील, उसमें यही हुआ है कि हमारा टैरिफ जो है टेक्सटाइल के ऊपर पहले 50% था, राइट, 25% रेसिप्रोकल, 25% यूनिटिव टैरिफ रेशियो का, तो उसको रिड्यूस करके हमारा 18% कर दिया गया है। जबकि हमारे जो आसपास के लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे आर बेसिकली लेविड 19%, 20% ऐसा है इनका। तो इंडिया विल स्टिल बी मोर कॉम्पिटिटिव देन बांग्लादेश। तो इसमें बांग्लादेश हैज बीन लूजिंग आउट बिकॉज ऑफ इंडिया साइनिंग ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज। बट देन इसमें अभी एक खबर आई थी कि ट्रम्प एंड मोहम्मद यूनुस आर ट्राइंग टू क्विकली stitch some trade deal wherein Mohammed Yunus gets some, I mean Bangladesh gets some more favorable tariff structure। तो अब वो होता ही नहीं होता है, क्योंकि देखो अमेरिका जो है वो डबल फेस्ड भी है, तो दे वांट देयर ओन एसेट्स इन बांग्लादेश, राइट। देवर बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बिठाई है वो इन्होंने बिठाई है यूएस में, एंड बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर
मिलिट्री बेस, राइट। सी यूएस जो है वो किसी भी कंट्री में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, और खास करके वो कंट्रीज जो चाइना के पास में। इंडिया डजंट अलाउ दैट, राइट। पाकिस्तान अलाउज इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर pally with Pakistan. Similarly, Bangladesh also kind of was eager to allow, and that's why they are in India. ओके, तो ये इंडिया, बांग्लादेश, यूएस और ये जो इक्वेशन है, वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज वी आर इन एनी केस द वर्स्ट सफरर, राइट। वी आर, हमारा पहले तो केवल पाकिस्तान से झगड़ा चलता था, फिर चाइना से भी हो गया और अब बांग्लादेश से भी हो गया, तो वी कैन काइंड ऑफ हैविंग कीप हैविंग फ्रिक्शन विद सो मेनी नेबर्स एट वन simultaneously, because it kind of opens up different avenues where we may have to engage, and that is not good for any country, right? तो इसलिए hopefully India is hoping that these people, once this guy comes to power, then we can restart or refresh our relations. Okay, so इतना कुछ हमें बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए. What else? और कुछ खास चल रहा है? So the Sorry. cricket, हम्म? the movements in cricket world, mainly the India, Pakistan, Bangladesh uh, friction that is going on. Okay, so what is that? Can you describe in a nutshell? Sir, so Bangladesh refused to take part in the T20 World Cup, Hmm. and then Pakistan has been now demanding, making certain demands to benefit Bangladesh, or even they are refusing to play. Regardless, like they are said to lose a lot if they refuse to play, but still they are vouching for Bangladesh. So So basically, this just adds on to what I was mentioning about Pakistan, the way Pakistan is treating Bangladesh. See, earlier, when we had good relations with Sheikh Hasina and the government there, then Pakistan did not try any of its antics there. I mean, they never sent their military people there, or their ISI people there. But now it seems that they are trying to supply a lot of weaponry also, and become very pally with Bangladesh, basically sowing anti-India seeds there, right? So that's why I said it is not good for us that Pakistan and Bangladesh, these armies, they start colluding, right? And that's why once the new government comes, then we should be trying to establish or restart the relationship. Okay, so ये सब linked है ये चीजें. What else? Sir, last week, president's rule in Manipur ended, and Kim Chand became the CM of Manipur. Right. So new CM of मणिपुर ना, उसके बाद में भी कुछ वहां पे अनरेस्ट हो गया, उसमें भी कुछ लोग घायल हो गए. वो क्या था? Sir, वो cookies वो MLAs were boycotted by their own community, तो उसकी वजह से काफी protest हुआ था. Why was they boycotted? Because they were representing the government which was not favoring like their standoff or not allowing Maitis to get the ST ये जो डेप्यूटी status. सीएम थे, right? There were two deputy CMs which were nominated, or which were kind of instated, and one was one lady of Kuki-Zo tribe. तो उसने दिल्ली से ही अपनी swearing in ceremony की थी, right? And see, basically the whole fight is between Kuki-Zo and Metis, right? Now this government, right, is BJP government, and obviously Kuki-Zo people feel that we've had the wrong end of the stick. We've been at the receiving end, and now our own MLA is going and becoming a deputy CM. So they didn't like this, and therefore there were a lot of clashes, and again some bit of unrest happened. So ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे पीस आ गया है और थिंग्स विल बी स्मूथ फ्रॉम नाउ ऑन, समथिंग लाइक दैट. अभी ये चलता रहा, राइट? तो इसका कोई सोल्यूशन ऐसा दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ. Sorry to interrupt, sir. Could you please explain again कि उनको क्यों बायकॉट किया था? Like I couldn't understand properly. देखो बेसिकली क्या है ना, वहां पे जो ट्राइब्स थी, दो ट्राइब है, एक मैतीज, राइट? सो दीज मैतीज वर बेसिकली दे आर फ्रॉम द वैली. वहां पे दो पार्ट है, एक वैली है और एक हिल्स है. तो
ये लोग वैली में प्रीडोमिनेंटली, ऐसा नहीं है कि वहां पे हिल्स में मैती कोई नहीं रहता और कुकीजो वैली में नहीं रहता, ऐसा नहीं था पहले। 2023 में जो लड़ाई झगड़े हुए थे, तो बेसिकली इनको एसटी का स्टेटस चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिलता था। तो दे हैड बीन गिवन द एसटी स्टेटस, राइट, बाय द कोर्ट्स, एंड दिस वाज नॉट liked by this because obviously there would be the losers there, right? तो इनमें आपस में बहुत सारे क्लैशेस हो गए। तो क्लैशेस होने से क्या हो गया कि ऑलमोस्ट देवर लाइक काइंड ऑफ आइसोलेशनिज्म हो गया, और दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक स्टेट। दैट मीन्स ये जो कुकीज वो थे सारे के सारे हिल्स में पहुंच गए, इनके जो लोग वैली में रहते थे वो हिल्स में पहुंच गए, और इनके लोग जो मैती के हिल्स में रहते थे वो वैली में आ गए। तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट टू स्टेट्स, राइट, एक कुकीज वो हो गया और एक मैतीज। अब यहाँ पे मैती जो है, तो ये वैली मतलब कहाँ, इम्फल में रहते हैं, इम्फल वैली। एंड कुकीज वो जो हिल्स का कंट्रोल करते हैं एरिया, वहां से सारे हाईवेज और जो जो भी सप्लाईज और वो आती हैं इसमें या मणिपुर में, वो वहीं से आती हैं। तो इन्होंने उसको ब्लॉकेट कर दिया, राइट। तो दे डिडंट अलाउ। तो उसके कारण बहुत झगड़े चल रहे थे। एंड ऑब्वियसली यू कैनॉट, आई मीन इफ यू स्टॉप दिस, तो दीज पीपल फील दैट हमारे हमारे अगेंस्ट है गवर्नमेंट, सो दे कैरी रिसेंटमेंट नाउ। अब इनके अब जो बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट थी, राइट। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो सीएम थे, तो उसके अगेंस्ट थे लोग, बीजेपी के एमएलए जो थे, दे वर नॉट वांटिंग दैट पर्टिकुलर गाय टू रिमेन, बट स्टिल द सेंट्रल, आई मीन आर बीजेपी लीडरशिप, they allowed that person to prevail for a very long time, and finally realized that he is basically not doing anything, and then they appointed a new governor who went there, and then he kind of imposed uh, president rule there. अब एक साल हो गया प्रेसिडेंट रूल को, तो उन्हें एक नया सीएम मिल गया, खेमचंद करके बीजेपी के एमएलए थे, उनका इसको सीएम बना, और इनको, और उसमें अब दो बना दो डेप्यूटी सीएम। तो ये जो डेप्यूटी, एक बीजेपी का एमएलए था, वो कुकीज वो की थी, ग्रुप की, और वो दिल्ली में रहती। तो उसने वहीं से स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर लिया, और ऑब्वियसली कुकीज वो लोगों को, तो दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद देम। तो उन्होंने फिर से क्लैश मचाना शुरू किया। तो दैट्स इन अ नटसेल अबाउट दिस रूल। आई मीन दिस इज Okay. व्हाट यू शुड नो। Thank you. इतना मतलब बेसिक लेवल पे इतना आपको पता होना चाहिए। सर ये प्रेसिडेंट रूल कब से है? तो प्रेसिडेंट रूल था फरवरी 12 से था लास्ट ईयर। तो इट लास्टेड ऑलमोस्ट 1 ईयर, पूरा एक साल चला हुआ। हाँ सर, वो वही टेक्निकलिटी होता है कि लाइक एक हम्म। साल से ज्यादा हो जाए तो उसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है। हम्म। तो दैट्स व्हाई दे इंस्टीट्यूटेड द सीएम नाउ। Yes, yes. You want to add something, Ashish? You can add if let's say if I missed out anything, or if नो नो maybe, सर। okay, it's in line with what you understand. Okay. Okay. So that's about Mizoram. Sorry, Manipur. What else? और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो रही है? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए, अभी अभी हुई है जो पिछले फ्राइडे को, और वो क्या थी? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? So that happened on this Friday, which was 6th of Feb. तो इसमें क्या हुआ, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे थोड़ा सा। तो रिपो रेट का क्या किया गया? The repo rate is same, 5.25. सेम रखा गया, करेक्ट। why was it kept the same? Why was it not reduced, or why was it not increased? Yes, Kaushal. सर ये इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में यही इज प्रेजेंटेड कि ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ वुड बी 6.8 to 7.2%. Inflation numbers are also expected to be on the lower side. So they are not committing to increase or decrease any interest rates and want to continue with the same. करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट कब चेंज होते हैं? इंटरेस्ट रेट जब चेंज होते हैं जब या तो इकोनॉमी इज स्टॉलिंग, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर व्हाट इट शुड, राइट, इट्स नॉट ग्रोइंग। तो ग्रोथ अगर नहीं हो रही होती तो उसको स्टिमुलस देने के लिए इंटरेस्ट रेट्स क्या किए जाते हैं? कम किए जाते हैं कि बढ़ा दिए जाते हैं? Reduce किए जाते हैं। रिड्यूस कर दिए जाते हैं, राइट। अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं तो उसका फॉलो आउट ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, राइट, बिकॉज पीपल स्टार्ट बाइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड inflation starts rising, and then RBI has to again increase the interest rates. तो ये एक साइकिल चलती है।
नाउ 7.4% की इन्होंने ग्रोथ की एक प्रोग्नोस्टिकेट कर दिया है कि अगले साल 7.4% ग्रोथ होगी, राइट, इन 2027. इन्फ्लेशन विल रिमेन रफली 4.24 रफली, राइट. तो अगर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो इस तरह के सिनेरियो को बुलाया जाता है गोल्डी लॉक्स सिनेरियो, राइट. ये भी आपको थोड़ा वर्ड पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ लें कि व्हाट इज गोल्डी लॉक्स सिनेरियो. Okay, so Goldilocks scenario is when the economy is growing at a good pace without associated increase in inflationary pressure. Goldilocks मतलब कि बिल्कुल ideal situation है, right? I mean, it's a kind of desirable situation that any country or any economy would want to be in. Okay, तो इन्होंने कहा भाई ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है, तो इंटरेस्ट को ना छेड़छाड़ किया है रेट को, राइट. इन्होंने बल्कि ये भी बोल दिया है कि हम अगले साल में शायद एक आध, मतलब इट शुड रिमेन द सेम, ओके, बारिंग सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. तो आपको यही ध्यान रखना. इसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में एक डेक है, उसको भी देख लेंगे, है ना. सो दिस इज अबाउट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट एल्स? और कुछ? ठीक है, इतना बहुत है. इसके अलावा भी चीजें हैं जैसे होती रहती हैं, हो रही हैं, जैसे कि इलेक्शंस होने वाले हैं 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो वो हमें पता होने चाहिए. असम में, बंगाल में और तमिलनाडु में और केरला, राइट, एंड पौंडीचेरी विच इज द यूटी. तो यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल. However, government has not increased or decreased any kind of allocation in these states. Generally क्या होता है, गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट बजट में स्टेट्स को खुश करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो सिर्फ उनकी गवर्नमेंट सिर्फ आसाम में है, सो दे वुड वांट टू विन डेस्परेटली इन 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 वेस्ट बंगाल. देखो तमिलनाडु में विन विन तो छोड़ दो, मतलब बहुत मुश्किल है. लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी इनको. केरला में भी एक आध दो मिलती है, तो वहां पे जीतेंगे नहीं, लेकिन दे वांट टू मेक सम डेंट्स. तो उसके लिए पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट उन स्टेट्स को कुछ ज्यादा एलोकेट कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है. सो दैट्स समथिंग व्हिच आल्सो यू शुड नो. व्हाट एल्स यू शुड नो? और क्या चीजें हुई हैं या हो रही हैं अभी? ये देखो हमारे जो लाइन से इंडिया ईयू एफटीए हुआ, फिर इंडिया यूएस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? हु विल एक्सप्लेन बिटवीन इंडिया ईयू एफटीए एंड इंडिया US trade deal, which is of course not signed, it is the framework that has been released. तो इसमें क्या फर्क है? मतलब जब भी वो डील साइन होगी, they are expecting it to be done by March, right? तो क्या फर्क है दोनों? सर आवाज नहीं आ रही? सर अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है. सर आई थिंक FTA स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो टैरिफ रेट्स जो है या तो बहुत कम हो जाएंगे या फिर हट दिए जाएंगे फॉर बोथ द कंट्रीज. वेराज ये जो हमारा US ट्रेड डील होगा, इसमें US ने हम पे 18% टैरिफ रखा है एंड दे आर आस्किंग अस टू आइदर eliminate or to reduce the tariffs a lot. So, I think tariff rates पे difference रहेगा. Right. So in no way they are going to reduce it to zero, right, for us. While on the other hand, they are expecting us to reduce it to zero. So for them it will be free trade. For us it will not be. So therefore it cannot be called a free trade agreement. Fine, fair enough. What other differences could be there? There is kind of limitation of luxury vehicles in EU FTA, but there is no restriction as such indicated in machinery imports or the aeroplane part imports for US. You want to say there is some bit of a quota-based barrier in India EU trade. जैसे कार आएंगी तो वो कार 250,000 ही आएंगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगी, right? Something like that you are Yes. saying. Yes. But there has been no mention of any quota-related barrier Yes. in the USD, right? कि हार्ले डेविडसन जितनी आएंगी वो सब ले लेंगे. Yes. Fair enough. Okay, that's a good point. What else? देखो इंडिया ईयू की जो ट्रेड डील थी वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. उसमें अपार्ट फ्रॉम टैरिफ्स देयर आर अदर थिंग्स आल्सो लाइक द इन्वेस्टमेंट, right? What all will EU invest in India? How much?
they will invest over a period of, let's say, 5 years. Then movement of students and professionals, like there will be no restriction of any kind on the number of visas that could be issued, and whether it is for students or it is for working professionals. So they would rather welcome. Whereas in the US, we know very well what the scenario is, and they don't want people to come, right? Whether it is for, I mean, they don't say that even for studying, but they're rejecting. I've come to know that they're rejecting student visas recently, left, right, and center. And also H1B issue, which is still a very thorny point, right? So which way the whole thing will tilt, we'll have to see. तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि EU वाली में ये चीजें भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल भी है, एंड सर्विसेज ट्रेड के ऊपर भी है काफी. इसमें सर्विसेज के ऊपर ज्यादा नहीं है अभी फिलहाल, इट्स मोर ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज. ओके, सो ये डिफरेंस है. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई दोनों के अंदर फर्क क्या है, तो ये बता सकते. अभी इसके बाद में चले आने वाले हैं कौन? EU हो गया, US हो गया. नेक्स्ट इन लाइन इज हूम. अभी GCC के साथ कर रहे हैं हम, विच इज गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, राइट, काउंसिल. उसमें 6 कंट्री है, राइट, लाइक सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, कतर एंड UAE एंड ऑल दैट. उनके साथ में हम कर रहे हैं. सो GCC के साथ में होगा. अभी कनाडा के साथ में भी होगा. कैनेडियन PM कौन है? हु इज कनाडा's PM? Sir, Mark Carney. Mark Carney, right? So he's going to be here in March. So as we know that he's been pre-revolutionary. US और कनाडा के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए. How is it at this stage? Is it very kind of pally one for me, or is it like very bitter? US has imposed considerable tariffs on Canada. How much? So They talk about 100%. yeah, I think the last time 35% or something. Yeah, but now they have threatened, because Carney had gone to China and he had allowed Chinese EVs to come in Canada. So this had got Trump riled very badly, and he says that I'm going to put 100% tariffs if you are giving a preferential treatment to China. You can't do a trade deal with China, right? He's like a jilted lover who thinks that all overtures should be towards him, right? So he calls Canada as the 51st US state. Sometimes he calls Mark Carney or any prime minister as the governor of 51st state. So he's been very open and vocal about his disdain for the Canadian leadership, and he thinks that Canada should silently merge with the US, right? So which is a ridiculous idea, because Canada is quite big that way. It's not a small thing, right? Small fish that you can just swallow. But then the point is, Canada has got a good dependence upon, or a great dependence upon the US, right? Lots and lots of Canadian exports happen to US, and they will be hurt by these kind of insane tariffs, and that's why they are also looking to diversify. Right? India and Canada relations कैसे थे बताइए अभी तक? पिछले कुछ 2-3 सालों में इंडिया कनाडा relations कैसे थे? So India, Canada were in a lot of conflict due to the Khalistani movement. Also, the previous PM, Justin Trudeau, he was very vocal about, not supporting India, right, and supporting Khalistani movement. Correct. Why did he used to support Khalistan? Any idea? We'll go one level deeper. You're right. Sir, there is a very strong Sikh lobby in Canada. Right, correct. So, देखो, basically, Canada में ये जो people who've been going, right, mostly from Punjab, so they form a very strong voter base, and predominantly these people run the gurudwaras and lots of other such institutions wherein there's a lot of cash collection. वहाँ पे बहुत बड़ा cash collection होता है. People who donate, right, and that used to be a bedrock of fighting elections for the Canadian prime ministers earlier. Justin Trudeau was basically in his own cabinet. There was a disproportionate representation of Khalistan, or not. I would not call Khalistan, the Sikh ministers, right? Cabinet में जबकि उनकी
2% ही रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन 6% उनको मिनिस्ट्री उनको वहाँ पे कैबिनेट में रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन नहीं था, पार्टिसिपेशन दे दिया गया, राइट. सो इट वाज बेसिकली that they were aligned with these six. Now obviously we have always been claiming that these six they are not there for altruistic purpose. They are out to create a secessionist environment there and revive the Khalistani movement. And therefore, in fact, earlier this निझार करके एक आदमी था वहां पे, उसको मरवा दिया था, मतलब मारा गया था वो, तो उन्होंने इंडिया की जो हमारे NSA है और उसको ब्लेम किया था, और इनफैक्ट उनके अगेंस्ट में केस भी लगा दिया था कि इनको दोबारा साहब को वहां पे आना पड़ेगा. तो उसको चलते हुए देयर वाज अ वेरी देयर वाज लॉट ऑफ बिटरनेस बिटवीन द टू कंट्रीज. उन्होंने हमारे यहाँ पे हमने अपने काउंसलर और वहाँ पे जो एम्बेसी है उसको बंद रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, काफी रिड्यूस कर दिया, उन्होंने भी यहाँ पे कर दिया था. एंड लॉट ऑफ डिप्लोमेट्स वर एक्सपेल्ड आल्सो फ्रॉम आवर साइड, उनके कैनेडियन को भगा दिया था हमने, उन्होंने भी भगा दिया था, राइट. तो इस तरह से देयर वाज अ कोल्ड काइंड ऑफ वॉर, वो नॉट कोल्ड वॉर पर था, मतलब काफी बिटरनेस. अब कार्नी जी आके इसको मतलब रिवाइव कर रहे हैं, थॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ही इन हिज स्पीच इन डेवोस he was talking about the new world order, or the world order that has been there, which has favored the heavy countries, I mean the big countries, right? And he says now middle power जो है, right? So Canada is the middle power, India is the middle power. अभी हेवी वेट में तो यूएस और चाइना बचे हैं, बाकी सब जो है वो काइंड ऑफ मिडिल पावर है. तो उसका ये कहना है कि मिडिल पावर्स को अलाइन करना चाहिए अपने आप को, ताकि इन लोगों से लड़ा जा सके, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द ways in which so he's going to do. So he is coming here. उनकी जो डील होगी उसमें primarily we are talking about uranium purchase from them, right? Uranium is a fuel for our nuclear powered power plants, right? Nuclear energy. तो 2.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर की एक डील हो जाएगी. इसमें वो हमें एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई करेंगे फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे कि हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज या मतलब जो नॉन फॉसिल फ्यूल वाली है वो एनर्जी बढ़ेगी, राइट. दैट पावर शेयर ऑफ दैट will increase in our power generation capacity, right? Plus he will also talk about some other things like restoring the relationship, resetting that button, and all those things, right? So Karni ji आएंगे मार्च. तो ये सब चीजें चल रही हैं. India is basically leaning out and trying to align with as many powers as possible. Though we kind of, for the moment, agreed on the framework of the US deal, but you never know. Trump, right? He might wake up from the wrong side of the bed tomorrow morning and then say something else. Right? Next day he might say something else. So people don't really trust him these days, right? So that's the in a nutshell about Canada. Okay, so now let's move to covering the stories in a little bit of more detail. Okay, so ये interim trade pact framework बना है अभी. This is not the entire deal, right? There is a framework, 10-point framework निकला था. उसमें मेजर यही था, 50% से उन्होंने रिड्यूस करके 18% कर दिया है. उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने कहा है कि वो हमारे को $500 बिलियन के गुड्स बेचेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years, राइट. करंटली व्हाट इज आवर इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, व्हाट लेवल? सर वी आर इन अ ट्रेड सरप्लस एंड अराउंड 80 बिलियन का ट्रेड होता है. 80 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था. 80 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, हाँ. और इंपोर्ट्स 45, यस. या 45 का सरप्लस है. 45 का इंपोर्ट होता है. तो अगर 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो वी गेट 225, राइट. सो इन नॉर्मल कोर्स we would have imported 225, but then Trump says that we have to import 500 billion, right? So whether that is too ambitious a figure or that can be achieved, we'll have to see, because there are a lot of other things in that which currently we are not buying from them, right? What all could be those things? So mainly like जो food product. हाँ. Sorry, please continue. Yes, I was just saying that thing, sir. Like mainly food grains है जो हमारा like staple है. वो नहीं तो वो इसमें डील में थोड़ी है. फूड ग्रेन तो कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, वो तो मर जाएंगे. तो Animal food, I guess they are exporting us. Animal food. देखो वो सब चीजें छोटी मोटी हैं. जो इसमें बड़ी टिकट आइटम है जो कि 500 बिलियन. अभी क्या मैं बोल रहा हूँ आपको कि 225 बिलियन जो हम GPUs, I guess. We are going to buy GPUs. We are going to buy GPUs, right? तो 225 को 500 एयरक्राफ्ट्स ज्यादा खरीद. Aircraft and aircraft parts, right? This is going to be a big thing
इसमें इन्होंने एयरबस से जो हमारी जो एयरलाइंस हैं, राइट, सो दे आर गोइंग टू बाय। तो कौन से दो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं एयरक्राफ्ट के? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल सिविल एविएशन वाले एयरक्राफ्ट, नॉट द फाइटर प्लेन्स। Sir, Boeing and Airbus. बोइंग एंड एयरबस। तो बोइंग जो है वो कहाँ की कंपनी है, और एयरबस कहाँ की कंपनी? US. France. तो विच ऑफ आर एयरलाइन बाइज एयरबस एंड विच एयरलाइन बाइज बोइंग? मेजर एयरलाइंस आई एम सेइंग। Sir, Boeing, Indigo. नहीं नहीं नहीं, इंडियन So I think Air India. एयर इंडिया बाइज, अरे वो ड्रीम Yes. लाइनर जो है ना, जो कि खराब हो जाता है, जिसका फ्यूल स्विच भी खराब हो जाता है, तो वो हाँ बोइंग हाँ. का है, राइट। अच्छा. एयरबस इज बेसिकली इंडिगो। So as we know that Air India has placed a huge order on Boeing for 500 aircraft, right? So that will be a big thing. Of course, US wants us to buy their fighter planes also, but अभी वो हमने कुछ नहीं खरीदा है। अभी हमने रफाल को ही चला रहे हैं। रफाल इज अगेन फ्रांस का। तो एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स इज समथिंग विच इज वेरी बिग। व्हाट एल्स? देयर इज अनदर वेरी बिग आइटम जो कि हम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेंगे तो शायद 500 बिलियन शायद के आसपास पहुंच सके। Sir, oil and energy ऑयल एंड imports. गैस, करेक्ट, वेरी गुड। गैस तो ले रहे हैं थोड़ी बहुत हम, एलएनजी एंड ऑल वी आर टेकिंग, बट ऑयल वी आर नॉट टेकिंग, राइट। ऑयल परचेज जो हमारा है वो पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से कहाँ शिफ्ट हुआ पड़ा था? रशिया। ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ आवर ऑयल वी वर टेकिंग फ्रॉम रशिया, बट नाउ दे वुड वांट अस टू गिव द वेनेजुएलन ऑयल ना, वो सेम क्वालिटी का है। यूएस का जो ऑयल है वो ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारी रिफाइनरीज उसके लिए नहीं बनी है, लेकिन जो वेनेजुएलन ऑयल है वो रशियन ऑयल से मैच करता है, तो हमारी रिफाइनरीज को उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब कितना ऑयल ले लेंगे, वो इतनी दूर से आएगा तो सस्ता होगा नहीं होगा। इसमें एक और एंगल है कि रशिया जो है कल को रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, राइट। आई मीन एट सम पॉइंट इट हैज टू एंड, एंड देन रशिया माइट इंक्रीज द रेट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये सब चीजें फ्लक्स में ही है। ओके, सो दीज आर टू थिंग्स। बाकी की चीजें हैं जो भी एग्रीकल्चर, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हैं, उससे कोई इतना वैल्यू नहीं बनती। सो दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो फ्रेमवर्क हो गया है, सिग्नलिंग रिन्यूड मोमेंटम टुवर्ड्स अ ब्रॉडर बायलैटरल ट्रेड प्लान। तो फ्रेमवर्क क्या है? तो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बोल रहे हैं। तो दिस विल बी प्लान दैट बोथ गवर्नमेंट्स हैव एग्रीड टू मूव टुवर्ड्स अ लार्जर कॉम्प्रिहेंसिव, और बीटीए, राइट। इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बोला जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्री नहीं है ये फाइनलाइज एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक तरह से आउटलाइन है इसका। और मोदी जी और ये सब ट्वीट करने में माहिर हैं, तो इधर ट्वीट करते रहते हैं। अब वो क्यों हो रहा है अभी, राइट, वी नो दैट this has been triggered by the Indian signing of deal with EU. US kind of was left behind, and therefore they agreed to do this, right? Key commitments: India will eliminate or substantially reduce tariffs on all US industrial goods. तो उसकी मशीनरी है, पार्ट्स हैं, और जो भी चीजें आती हैं, जो इवन जो आईटी प्रोडक्ट्स होंगे, राइट, चिप्स हैं जितनी भी आएंगी, ऑल दोस थिंग्स, तो उसके ऊपर उन्होंने या तो एलिमिनेट या फिर सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देते हैं। नाउ दिस इज अ थॉर्नी इशू, राइट, because as far as what people were made to understand is agriculture will be kept out of the deal, but there are certain items. Now what Piyush Goyal and other people or BJP party, they are saying that ये कोई मटीरियली बहुत सिग्निफिकेंट चीजें नहीं है, और ऑलरेडी ये पहले इंपोर्ट हो रही थी, कांग्रेस के जमाने में भी इंपोर्ट हो रही थी। ये नाम 2-3 याद रख लेना: DDG, राइट, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स, रेड सोरगम, एनिमल फीड, ये एक एनिमल फीड है। प्री नट्स, तो जो हमारे बादाम, अखरोट, क्रैनबेरीज, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो खूब खाओ पिस्ताचियो, जसप्रीत बुमराह जो है वो खूब ऐड देते हैं, तो उसी तरह से अमेरिकन पिस्ताचियो खाओ सस्ते में। सोयाबीन ऑयल, नॉट सोयाबीन, तो ये आएगा वाइन एंड स्पिरिट्स, राइट। तो इन सब चीजों के लिए अलाउ किया गया, राइट। अब ये अलग बात है कि इसको लेके भी फार्मर कम्युनिटी में हल्ला हुआ, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो, हमने जो मेजर फूड प्रोडक्ट्स
राइट, मेज, कॉर्न, wheat, राइस, ये सब इसके बाहर रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। दूसरा, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर रखे गए हैं, क्योंकि उनका जो अगर डेयरी चीज भी लाने लगेगी तो हमारे यहाँ के लोग दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, राइट। हाउ इज इट दैट द अमेरिकन एग्रीकल्चर इज सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव? व्हाट कुड बी द रीजन? हमारे लोग डरते क्यों हैं उनसे? Sir, it's highly commercialized and there are much less like Yeah, small players than what are करेक्ट, in they work on scale. Like they स्केल, have large farms and therefore they are able to produce goods at a very cheaper rate. दे हैव गॉट लार्ज फार्म्स, राइट। हमारे यहाँ पे जैसे नहीं कि छोटे छोटे से फार्म, 2 भाई थे, 4 भाई हो गए छोटे छोटे। और दूसरा ये है कि वो मैकेनाइज, वो जो इक्विपमेंट भी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं। हमारे यहाँ Yeah, I जैसे, think sir उनकी yield भी हमसे ज्यादा है, like हाँ, India यील्ड बहुत की ज्यादा है, जितनी। इट इज 10 times, दैट इज द रीजन व्हाई and the consumption comes कम है हमसे comparatively। हाँ, बिकॉज पॉपुलेशन नहीं है उनकी इतनी। वही तो वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं अपना। करेक्ट। So these are the reasons why our farming community is scared of the American, right? तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें these are नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना। देखो, बैरियर्स जो होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स, मीन्स आपने ड्यूटी लगा दी, महंगा कर दिया। दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, आपने उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रिंजेंट कर दी। आपने कह दिया कि नहीं, वहां से जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें नहीं आएंगी, आपने कह दिया कि वहां पे ये सब स्टैंडर्ड्स एडियर करने पड़ेंगे, तो ये सब आपने या फिर कोटा लगा दिया, राइट। यू हैव कोटा दे। तो किस तरीके होती है, हाँ, तो आपने ये सब कर दिया, तो अब वो भी हटा देंगे कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन आईसीटी प्रोडक्ट्स, वो भी हटा दिए, स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग नॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इसको भी हम ईज कर देंगे, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे। परचेज कमिटमेंट्स देखिए, 500 बिलियन, एनर्जी प्रोडक्ट्स और एयरक्राफ्ट, ये सब मेजर है। प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी गुड्स लाइक जीपीयूज, कंप्यूटर, हार्डवेयर, तो ये चीजें करके 500 तक फिर भी, लेकिन पहुंचना कोई मतलब मजाक हंसी खेल नहीं है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन। what is our trade with China in current the latest figures आए हैं, which is also alarming anyone? ये इसके तो 3 नंबर हमें पता होने चाहिए बस, बाकी तो छोड़ दो। What should be the number that we should know? What is the level of total level of trade with China? How much of that what we export and how much of that we import? And what is the trade deficit? देखो, हमारा जो चाइना के साथ में इस बार अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, 135 ट्रिलियन बिलियन, राइट, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। इतना ट्रेड हमने चाइना के साथ में नहीं किया। इसमें से 116 इधर ट्रेड डेफिसिट, विच इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड। अभी तक 100 तक करीब ट्रेड डेफिसिट होता था, मतलब इसमें हमने उनको 19 बिलियन के गुड सप्लाई किए हैं, राइट, और उन्होंने हमको 135 minus 19, तो कितना गड़बड़। एनीवे, चलो, आप ये याद रखो कि 116 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया चाइना के साथ, क्योंकि पहले 100 बिलियन भी हो गया था तो काफी हल्ला हो गया, राइट। सो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला गया, थोड़ा सा हमारा ये बढ़ा है, देयर इज नो डाउट दैट आवर एक्सपोर्ट्स टू चाइना हैव इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट, बट इट डजंट मीन दैट कि आपको इंपोर्ट भी बढ़ाया। सो इंडिया हैज प्लेस्ड टू बाय 500 बिलियन, ये हमने बात करी। यूएस की कमिटमेंट क्या है कि देखिए, हमने 18% दी, है ना। लोग रो रहे हैं कि यार पहले तो 4% था, 3% था, अब 18% है। तो ये लोगों को ये बोल दीजिए, अगर कोई बोले कि यार अर्लियर इट वाज दिस, तो वी आर लूजिंग आउट, तो बोलो यार ये वो नहीं, एरा नहीं है। बिफोर ट्रम्प व्हाटएवर वाज देयर, वो रात गई बात गई। अब ट्रम्प के जमाने में आपको देखना है कि दूसरों से कंपैरिजन में आपका कितना है। तो दूसरों के अगर 19, 20 है और 27 है, चाइना के भी ज्यादा है हमसे, तो वी शुड नॉट बी टू ऑब्सेस्ड अबाउट इट, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये इशू है, क्योंकि इसमें काफी लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमने सेल आउट कर दिया, इज दिस डील अ सेल आउट, राइट, हैव वी एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हाइल फेलिंग मिजरेबली टू impose our terms on them.
तो ये पहले 25-50% था। तो इससे हमारे जो एक्सपोर्टर से टेक्सटाइल एंड अपैरल, राइट, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें वो नहीं आया जो हमारे श्रिम्प प्रिंट वाले बेचते थे, जो फूड आइटम्स, सी फूड वगैरह जो बेचते थे, तो उनके लिए भी काफी नुकसान हो रहा था उनका भी। तो इनको काफी रिलीफ मिल जाएगी। US will remove tariffs entirely on certain Indian products subject to final agreement, generic pharmaceutical, gems and diamonds, aircraft parts. Right? Certain aviation-related tariffs imposed on national security will be lifted. Preferential access tariff rate quotas for certain Indian automobile parts. कुछ कोटा भी सेट की जाएंगी, प्रेफरेंशियल रेट दिए जाएंगे। रूल्स ऑफ ओरिजिन बनेंगे कि चाइना का माल आके यहाँ से ना चला जाए, इंडिया में जो बना है वही जाए। पता पड़ा चाइना का माल लेके और हम इनडायरेक्टली वहां भेज रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। ओके, जो इसमें नहीं है, राइट, सो मेज, व्हीट, राइस, सोयाबीन, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, एनिमल फीड, इथेनॉल, फ्यूल, टोबैको, सिलेक्टेड वीट, ये लोग वो बोल रहे थे ये भी डालिए, लेकिन हमने ये नहीं डाला। फूड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट फार्मर्स। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफी एक्सेस मिल जाएगी यूएस की टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, और ये काफी बेनिफिट करेंगे। MSME, एंड दे कुड सी सम ग्रोथ। अमेरिकन के लिए एनर्जी प्रोडक्ट्स, फूड एंड एग्रीकल्चर वगैरह चीजें भेजेंगे, वो रिड्यूस नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो हमारे यहाँ से कम्पीट करें, राइट। इस तरह से ये इंडिया EU, है ना, ये तो हमने देखा ही था इससे कि यूएस ने मदर ऑफ ऑल डील्स से परेशान होकर सुन सुन के उसके काम पक गए, तो इसलिए उसने भी हमसे साइन किया। इंडिया मल्टी पार्टनर अप्रोच अडॉप्ट कर रही है, EU, US और सबके साथ में। कनाडा की बात भी की मैंने, अभी GCC की बात भी करी, पहले भी साइन कर चुके हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ में, ओमान के साथ में, और UK के साथ में, राइट। तो वी ऑलरेडी साइन दोज एग्रीमेंट्स। तो वी वांट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल मार्केट। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मार्च तक, ऐसा कह रहे हैं। ओके, अब देखिए फार्मर्स जो है वो हल्ला करने लगे, तो उन्होंने कहा है कि 12 फरवरी से सड़क पे आ जाएंगे। 12 फरवरी को कोई स्ट्राइक भी हो रही है यूनियन, ट्रेड यूनियन की, तो उससे अलाइन करके उन्होंने कहा है कि आपने देश को बेच दिया और फार्मर्स के जो हित है और जो उसके इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में नहीं रखा, राइट। तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा SKM, जिसने लास्ट ईयर क्या है, 2020-21 से लेके और अभी तक फार्मर प्रोटेस्ट जितने भी हुए उसमें लीड किया है, तो इन्होंने कहा ये टोटल सरेंडर है, और फार्मर्स को बोला है कि आप फरवरी 12 को आइए। तो संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान सभा, इन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, राइट। ये देखिए हमने, फार्मर्स एंग्री क्यों हैं? क्योंकि ऐसा परसेप्शन बन गया, राइट। आर ऑपोजिशन पार्टीज आर ऑल्सो फैनिंग और फ्यूलिंग दैट, एडिंग फ्यूल टू द फायर। आग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र सरेंडर कर रहा है। तो टोटल सरेंडर कर दिया आपने, और वीकेंड इंडिया एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, फियर ऑफ चीफ इंपोर्ट्स। इवन तो गवर्नमेंट से एग्रीकल्चर एंड डेयरी आर प्रोटेक्टेड, फार्मर्स फियर करते हैं कि अमेरिकन एग्रीकल्चर लो प्रोडक्शन कॉस्ट और DDG एंड ये सब इंडियन मार्केट्स को ओवरवेलम कर देंगे, और US में इन चीजों को काफी सब्सिडी मिलती है, तो इसलिए काफी सस्ती आ जाएंगी ये चीजें, तो हमारे यहाँ पे ये मार्केट खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्टरी गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, वो कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट कभी कहती है कि इन दोनों को बिल्कुल बाहर रखें, और कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो हम किसको ट्रस्ट करें। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो DDG, सोयाबीन ऑयल और इनको लेके काफी चिंतित है। वो कह रहे हैं इवन इफ टैरिफ बैरियर्स रिमेन, डिस्कशन अबाउट नॉन टैरिफ बैरियर्स could open channel to new input, affecting domestic farm prices, the impact on dairy and livestock sector। तो वो कह रहे हैं कि भाई भले ही आपने एक्सक्लूड कर दिया हो, लेकिन जो फीड इंपोर्ट्स और प्रोसेस फूड्स वगैरह जो आ रहे हैं, उससे डेयरी इकोसिस्टम अफेक्ट हो गई, राइट। तो इस तरह से US में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखिए हमारे ये सब भी जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये चित्र देख देख के भी वो घबरा रहे हैं कि देखो US में तो अपने उसमें, US का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसका है। फार्मर की डिमांड है कि रेजिग्नेशन दे दीजिए मिस्टर पीयूष गोयल आप, राइट। पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट ये साइन नहीं करेगा। क्लैरिटी चाहिए, कंसिस्टेंट ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और लार्ज प्रोटेस्ट विलेज और रूरल एरिया पार्टिसिपेशन वर्कर एंड ऑल दैट, सिंबॉलिक एक्शन टाइप बर्निंग ए फ्री विलेजेस। गवर्नमेंट का स्टैंड है कि देखो इससे किसी भी एग्रीमेंट में देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू।
तो ये डील जो है स्ट्रेंथन करेगी इकोनॉमिक टाइप्स को और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगी, और हाई प्रायोरिटी एग्रीकल्चर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो इसलिए करने दीजिए। तो अब ऐसा ही है भाई, जब आप जो अपोजिशन में होते हैं वो लोग, उनका काम है इसको अपोज करना और इनका काम है इसको फाइट करना। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको पूरा पार्लियामेंट में डिबेट करा, पार्लियामेंट में होता तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ पे सिवाय लड़ाई झगड़े। अब ये पहले भी फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं हमें 2021 में, ब्रॉडर implications in the US relations, ठीक है। So this is what, suppose आपसे पूछता है कि what do you think, let's say is India US trade deal going to be beneficial net for India or not, so what would be your answer? suppose आपसे जजमेंट देने की बात कर रहे हैं। Anyone? Sir, I think it would be. I mean, it's obviously not finalized yet, so nothing concrete can be said. But in overall, like larger scheme, it would be certainly beneficial because जो अभी तक trade हो रहा था अगर वो रुक जाएगा, so that would do us more harm than whatever is happening would be better. मतलब Correct. Correct. So I agree with you that we have to move, and in that we have to give something to take something. And when such a big market is there, and historically, so it's a, so okay. I mean, the deal, any deal that you do should have a utilitarian effect. That means maximum shareholders को उसमें फायदा होना चाहिए। तो फार्मर्स का ठीक है, उनका जो थोड़ा बहुत होगा, ऐसे सभी का होगा, एमएसएमई का भी नुकसान होगा, कई चीजें आ रही है यहाँ पे, तो सभी को कुछ ना कुछ अपने आप को टाइटनिंग द बेल्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो यू कैनॉट हैव फ्री लंच फॉर एवर, राइट। तो इसलिए ये चीजें अच्छी, मेरे हिसाब से भी आई वुड गिव इट अ पॉजिटिव थिंग, राइट। किसी को अगर उसके नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में क्या है कि आपने मान लिया उसने जो बोला, तो भाई ये तो सबको पता है कि ट्रम्प किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये कोई छुपी बात तो है नहीं। बाकियों को कैसे धमकाता है वो, और बाकी तो उसके अलाइज हैं, दे आर वेरी क्लोज अलाइज विथ whom they've been working for decades, and to them if he could treat like this, then whatever language is there or whatever the way he has gone about, I mean that is to be expected. We can't expect him to uh, roll out a red carpet and lie down prostrate himself before others. But वो तो ये चाहता है कि लोग मेरे दरबार में आके मत्था टेके, वो कभी मत्था नहीं टेकेगा। तो आपको उसको समझना है और उस हिसाब से प्ले अलॉन्ग करना है। 500 बिलियन का कोई कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट होता भी नहीं है, ठीक है। उसने 500 बिलियन बोल दिया तो हमने सुन लिया, सो दैट्स हाउ इट इज। यस राजेश। Sir, how this deal is like gonna impact India-Russia like relations in India, longer term? Russia have got a very strong relationship, and as has been also declared by their people that we don't know anything, like we have not been informed that they are going to reduce, and things are going on. देखो ये जो इस तरह की चीजें होती है, ये कोई ओवरनाइट नहीं चाहिए होती। there are deals, which are signed between companies. See, it's not that Modi is buying oil from Putin, right? Or Indian government is buying oil from Russian government. It's basically between two companies, right? So they get into contracts, and those contracts are not like अभी कई सारा रास्ते में है तेल, कई सारा वहां से चलने की तैयारी हुआ है, कई सारा यहाँ पहुंचने वाला है, तो अब आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं यार ये सब नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ, तो ऐसा नहीं होता, right? जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो 4 महीने 6 महीने 1 साल तक के होते हैं, तो धीरे धीरे चीजें होती हैं, तो धीरे धीरे होंगी। बट पुतिन ऑल्सो नोज what kind of person Trump is. So it's not as if that there is any bad blood created between India and Russia because of this, right? Okay, sir. RBI monetary policy. So we discussed that repo rate has been kept unchanged, right? तो सबसे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लो। 6 मेंबर बॉडी होती है, राइट। इसका जो मैंडेट है, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। 6 फरवरी को इनकी मीटिंग हुई थी, एमपीसी केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड। तो की रेट एट विच इंटरेस्ट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, राइट। तो रेपो रेट होता क्या है कि बैंक्स को अगर पैसा चाहिए कुछ शॉर्ट टर्म में, तो वो आरबीआई से ले लेता है, राइट, और अपनी सिक्योरिटी वहां पे छोड़ देता है, और फिर रीपरचेज करता है उनको। तो रीपो बेसिकली मीन्स रीपरचेज, है ना। किसी से पूछा जा सकता है ये, यार ये रीपो वर्ड कहाँ से आया, right? तो
repo basically is repurchase. So the banks when they need money, suppose इसको 100 crore चाहिए SBI को, right? तो SBI को एक्सेस तो ये चला गया RBI के पास, तो RBI ने इसको 100 करोड़ दे दी, इसने उसको अपनी सिक्योरिटी वहां पे रख दी और इसको चार्ज हुआ इंटरेस्ट 5.25, फिर ये वापस कर देगा पैसा जितना लिया 100 करोड़ और ये ले लेगा वापस दरअसल रीपरचेज, ठीक। और यही रेट जो होता है ये रेट बेंचमार्क बनता है इंडस्ट्री में, और जो बैंक्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स देते हैं, वेदर इट इज कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, होम लोन और बिजनेस लोन, तो उसके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो इसी से फ्लो होते हैं। अगर ये बढ़ा तो आपको भी होम लोन पे रेट बढ़ जाएगा, ये कम हुआ तो आपका भी कम हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए आइडियली। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स। इट हैपेंस बट नॉट रियली पैरेलली। कुछ बैंक्स कर देते हैं जल्दी, कुछ बैंक्स 100% नहीं करते, बदमाशी करते हैं, है ना, बट ठीक है, मोटा मोटा हो जाए। पॉलिसी स्टैंड रिमेन न्यूट्रल, तो आरबीआई इज नीदर अग्रेसिवली टाइटनिंग और ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स आर स्टेबल फॉर नाउ। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है, राइट। एज वी नो देयर आर 6 मेंबर्स हियर, इसमें 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के। इसमें आईएम्स के भी होते हैं कई बार। प्रोफेसर जयेश वर्मा थे जो पिछले काफी टाइम तक थे, अब नहीं है वो, अब कोई और आ गए। एक बार बेंगलोर के आईएम के वगैरह भी थे, इसमें भी आप लोग you may get the chance to study under some of those elite personalities. ये 2 जो होते हैं ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, और इसमें 6 लोगों का, तो अब इसमें से अगर सपोज 4 पीपल से दैट इंटरेस्ट रेट चेंज करो, तो कहते हैं नहीं करो, तो फिर चारों की सुनी जाए। अगर 3-3 हो गया टाई, तो उसमें फिर जो ये कह रहे हैं, राइट, ही विल बी द टाई ब्रेकर, उसकी सुनी जाएगी। तो आपसे पूछ सकते हैं सपोज 3-3, there's a tie between the votes for changing or reducing the interest rate and against, तो उसमें जिस तरफ आरबीआई गवर्नर होते हैं वो मान लें। ये 2016 में बनी थी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, और ये हर एटलीस्ट 4 बार मिलती है और एट मैक्स 6 बार मिलती है, तो 2-2 महीने बाद मान लो 6 बार मिलती है, मतलब 2-2 महीने में मिलती है। ये इंटरेस्ट रेट्स हैं हिस्टोरिकली, राइट। आप इफ यू सी कोविड के पहले काफी ज्यादा थे, कोविड में इकोनॉमी स्टॉल हो गई थी, इट नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में तो कम किया जा रहा है, राइट, सो दैट इकोनॉमी कम्स आउट ऑफ दैट, एंड देन इट वाज ऑलमोस्ट 4% तक चला गया, ओके। और फिर जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी और इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, राइट, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, तो फिर धीरे धीरे उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर, ये धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1.5 years or so, interest rates were again taken back to 6.5%, okay, which is pretty high. और फिर ये चलता रहा ऑलमोस्ट, आप देखिए 2 साल से ऊपर चलता रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होके नहीं दे रहा, फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुआ, तो इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने कम करना शुरू कर दिया, और आप देखते हैं 5.25% रुका हुआ है। पिछले, अगर आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में 2025 के बाद पिछले साल 4 रेट कट हो गए, 1, 2, 3 and 4, टोटल 1.25% के 4 रेट कट हुए। एक बार तो 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, राइट, यहाँ पे देखिए 6 से 5.5 कर दिया, बाकी टाइम ये 0.25 ना। एक चीज और ध्यान रखिए, बेसिस पॉइंट्स, वी शुड नो व्हाट इज 25 बीपीएस, राइट, और 10 बीपीएस, तो 10 बीपीएस इज 0.1%, 25 BPS is 0.25%. 50 basis points is 0.5%. This terminology we should be aware, right? Whether you are an economics graduate or a finance graduate or a IT graduate. Okay. Why did they hold steady rates? क्योंकि इकोनॉमी फास्टर ग्रो कर रही है, 7.4% बढ़ रही है इस साल, और इसलिए फिर जरूरत नहीं कम करने की। इन्फ्लेशन भी लो एंड स्टेबल है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको वैसे ही रहने। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट ड्राइवर, ये तो हमने बात कर ली है। चेंजेस इम्पैक्ट लेंडिंग रेट साइकोलॉजी, rates remain unchanged, bank don't get cheaper funds, borrowers might not see lower EMI on loans, domestic inflation, देखो 2 चीजें, हाँ, वन वी शुड नो दीज 2 terms,
I don't know how many if you're aware, if at all aware, you can check, tell me. Headline inflation and core inflation. बताइए इसमें क्या फर्क है दोनों में? नहीं मैम। वो इन्फ्लेशन जो होता है बेसिकली वो होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स होता था, राइट। तो बताइए ये सीपीआई क्या होता है? So is it a basket of goods हम्म like food and other necessities, फिर उनका एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। राइट। देखो एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, देयर इज अ बास्केट, राइट। तो जो आपकी डे टू डे चीजें हैं, फूड, फ्यूल, एनर्जी, एजुकेशन, मेडिसिन, राइट। फूड में सब आ गया, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, सब आ गया। टेलीकॉम, राइट, टेलीकॉम इज सर्विस। तो इन सब की एक बास्केट बनाई जाती है और उसमें वेटेड एवरेज निकाला जाता है, ठीक? तो वेटेड एवरेज जो निकलता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो भी फिर आपका उसी के ऊपर फिर आपका इन्फ्लेशन देखा जाता है कि आज अगर कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स 10 है तो कल को अगर समझो 10.05 हो गया तो 5% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट, राइट। 10.5 हो चुका है। अब व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो कोई बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इंडिया में 1.3% चल रहा है, दिस इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इज बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस। इन दोनों को वोलेटाइल माना गया है। कोर इन्फ्लेशन को माना गया है कि वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल रहे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर फूड और फ्यूल को निकाल देते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है। तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी एक विचित्र सी सिचुएशन है कि अभी सपोज करो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 1.3% हमारा टोटल इन्फ्लेशन चलेगा, तो दिस इज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट अगर कोर इन्फ्लेशन कोई बोल रहा था तो यार देखो ये कोर इन्फ्लेशन तो 4% रिमेन्स लो है, 2.6% चलो, कोर इन्फ्लेशन 2.6% है। तो ये कैसे हो गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन विच इज द टॉप थिंग इज लोअर देन कोर इन्फ्लेशन? हाउ डिड दिस हैपन, एनीवन? Food prices has हाँ, decreased. फूड प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाट दे से। देखो मैं भी इसमें अपना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जो फूड और फ्यूल प्राइसेस हैं ये कम हो रही है। तो ये टोटल है, दैट मीन्स कि कोर इन्फ्लेशन में जो बाकी की चीजें हैं उसमें से जो नेगेटिव है 1.3% ऑलमोस्ट, आप समझ लो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर माइनस कर दूं मैं तो अगर फूड प्राइसेस आर -1.3, तो नेट इम्पैक्ट आ रहा है आपका 1.3%। इसके अंदर वो कहते हैं कि ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स भी आते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा चल रही है, तो उसके कारण आपका ये कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। That's what this is। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये मैं रीड अबाउट दिस इफ यू वांट टू नो मोर। यस ये सर यहाँ पे अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी बताया था कि 2.1 हो गया इन्फ्लेशन 2 से। वो कौन से इन्फ्लेशन की वो बात हो तो रही टोटल की बात करते हैं, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। है? दैट वाज 1.33 जो पहले हाँ 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 2025 हाँ था। हाँ, ओके। correct. Okay, why did RBI tweak? So it's about gold and silver. Slightly raised because that's not every day, because not because everyday items are getting costly. Main reason is jump in price of precious metals, like gold and silver. जिससे कि 60 to 70 basis points, right? So 60 to 70 basis point means 0.6% to 0.7% में ऐड हो जाता है उसमें। और ये मेटल्स जो है इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन नहीं करते। तो आरबीआई ने कहा कि अंडरलाइंग इन्फ्लेशन रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन लो, ऐसा कह रहे हैं वो, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता है। व्हाट इज मल्होत्रा एंड कंपनी डन फॉर बैंक कस्टमर्स? अब देखो इसमें एक नई जो अब आई है, चलो इन्होंने रिपो रेट ये अगर चेंज नहीं किया, लेकिन एक नई स्कीम लेके आए हैं
इम्प्रूविंग कस्टमर प्रोटेक्शन। अब देखा हमने फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत सारे, बूस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ईजिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर बैंक्स। तो यहाँ पे कस्टमर सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी है और डीपन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये करने की बात की गई है इसी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी में साइड में भी कुछ कर सकते हैं, नई चीजें भी बता सकते हैं। तो 3 ड्राफ्ट गाइडलाइन है कि मिस सेलिंग जैसे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आके यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेच देता है, विच इज द मोस्ट यूजलेस, कभी खरीद मत लेना, यूलिप करके आता है। वो आपको ऐसे आके बताएगा कि दिस इज समथिंग लाइक अ मैजिक बॉन्ड फॉर यू फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो वो बेच देते हैं जबरदस्ती आपको। तो ऐसे कोई मिस सेलिंग अगर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने गाइडलाइन बनाई। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स। अब आपने देखा है कि अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो गुंडे बदमाश आ जाते हैं, राइट? वो आपसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं, दे ट्राई टू इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट? तो उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन बना दी कि ऐसा नहीं होगा। और कस्टमर लायबिलिटी इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर सपोज करो कि किसी ने आपका पिन भी ले लिया है और आपका आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर दिया है तो आपकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। दैट मीन्स यू विल नॉट बी रिफंड। किसी ने 50 लाख निकाल लिए हैं तो ऐसा नहीं है, 5 लाख रुपए तक की आपकी है लायबिलिटी होगी, ऐसा कुछ बना। दूसरा, कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल वैल्यू। ये मैंने आपको भेजा था कि 25,000 तक का कवरेज है आपको, राइट? अगर आपका फ्रॉड हुआ है तो 25,000 तक की कॉम्पेंसेशन मिलेगी, राइट? मैक्सिमम यही रहा, 25,000 फॉर लॉस इनकम स्मॉल वैल्यू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। मिशन सक्षम, ये वही सक्षम है कि ये है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एक अलग टाइप के बैंक्स होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मिशन सक्षम किया है ताकि उसमें 1.4 लाख पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करें। दिस इज अबाउट देयर फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात, ये जो बैंक बूस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो वो ये यूसीबी मिशन सक्षम में करते हैं, ठीक है? कूल। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू इंडिया मलेशिया। इसमें मतलब आई विल नॉट काइंड ऑफ एक्सप्लेन, यू कैन गो थ्रू दिस, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू। अनवर इब्राहिम पता होना चाहिए हमारे को, मलेशिया के पीएम है। देखो इंडिया मलेशिया रिलेशन जो है वो भी एक तरह से इंडिया कनाडा जैसे गड्ढे में चल रही है। क्यों चला गया था यही मतलब, इसके पहले महातिर मोहम्मद थे एक उनके पीएम। तो व्हाट वाज द इशू बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया? इनफैक्ट वहां से जो पाम ऑयल होता है वो हमने लेना बंद भी कर दिया था, जो बिग ब्लू। The government was more close to China's और investments चाइना, and पाकिस्तान एंड टर्की, काइंड ऑफ यू कैन yes, से चाइना, बट दे वर क्लोज टू टर्की एंड पाकिस्तान। देखो ये वो कंट्री हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 जब लगा था तो उसका विरोध किया, यूएन में भी किया था और हर जगह किया, राइट? आर्टिकल 370 के देवर डेड अगेंस्ट। तो रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया सावर्ड when article 370 was implemented in JNK, right? तो वहां पे उस टाइम पे मोहम्मद महातिर करके थे, उन्होंने काफी हल्ला किया था इसके अगेंस्ट, राइट? बिकॉज दे फेल्ट दैट इंडिया was going beyond whatever mandate they had. तो now this fellow has come, अनवर इब्राहिम, तो इसके साथ अच्छे रिलेशन है। तो इन्होंने डिफेंस इकोनॉमी और आसियान वगैरह में, आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें काफी सारे लोग हैं, 10 लोग हैं। सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, अम, इससे 2-3 और हैं छोटे छोटे, ब्रुनेई, ब्रुनेई भी है। तो ये अभी विजिट हुई थी और होस्टेड बाय अनवर इब्राहिम। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की बात की गई थी, और इसको अब कैसे आगे ले जाया जाए। मलेशिया इंपॉर्टेंट क्यों है? गेटवे टू आसियान, राइट? तो अभी इसका अगर चित्र देखेंगे तो हम यहाँ पे मलेशिया है, सो लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम भी काफी है, फिलीपींस भी है, राइट? ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, तो इतनी सारी कंट्रीज इसमें है आसियान में। तो ये एक तरह से गेटवे है। और मलक्का स्टेट जो है यहाँ पे, जो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सी रूट, तो इनसे हमें दोस्ती रखनी थी। क्रूशियल मैरीटाइम रूट्स पास थ्रू मलेशियन वाटर्स। लार्ज इंडियन डायस्पोरा,
बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, 27 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के, राइट? सो यू कैन इमेजिन दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट काइंड ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एनी कंट्री आफ्टर यूएस. टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है. मलेशिया इज अ बिग हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. अब इसमें देखो ये पिलर्स हैं बहुत सारे और आउटकम्स हैं. डिजिटल इकोनॉमी, दो तीन चीजें याद रख लेना, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है. यूपीआई, इंडिया यूपीआई का जो वहाँ का जो यूपीआई है उसका नाम है डू इट नाउ. इसको दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा हमारे यूपीआई से. तो अगर हम मलेशिया में जाते हैं तो आपको पेमेंट करना है तो आप उसकी डू इट नाउ पे जाके पेमेंट कर सकते हो. तो आपका आपके बैंक से पैसा चले जाएगा, राइट? यू डोंट नीड टू गो थ्रू अ क्रेडिट कार्ड और एनी अदर. वहाँ पे एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब करने की जरूरत नहीं. मलेशिया में आप घूम रहे हो, वहाँ पे डू इट नाउ कर दो पेटीएम की जगह. तो ये एनपीसीआई जो है हमारा नेशनल पेमेंट काउंसिल और पे नेट मलेशिया, इनके सौजन्य से ये इंप्लीमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडियन टूरिस्ट कैन पे इन मलेशिया. मलेशियन स्टूडेंट्स इन इंडिया कैन सेंड रिसीव मनी इंस्टेंटली. मलेशिया तभी वही है इंडिया में है तो नो फॉरेस्ट कार्ड्स, नो स्विफ्ट डिलेस, नो कैश डिपेंडेंस. इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सपोर्ट हो जाएगा, right? और वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के बाहर काम करेंगे. डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म एंड ऑल, ये सारी चीजें. नेशनल सिक्योरिटी, तो इंडिया नेशनल सिक्योरिटी, नो डबल स्टैंडर्ड्स. सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन, राइट? तो मलेशिया बोल रहा है हम लोग भी फैब्रिकेशन के बैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. तो उसमें ये सब चीजें हो जाएंगी, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सचेंज, जॉइंट R&D, जॉब क्रिएशन. इससे चाइना के ऊपर हमारी सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी एंड इट कुड अलाइन विद चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी. पीपल सेंट्रिक एंड लेबर फोकस्ड आउटकम्स. तो इससे हमारे जो वर्कर्स है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में उनको फायदा हुआ है. डबल डबल कंट्रीब्यूशन अवॉइड हो जाएगा. रिपोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स, मतलब उनको अगर वहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पे भी फिर ट्रांसफर हो सकता है. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इन वर्कर वर्किंग मलेशिया. न्यू इंडियन कॉन्सुलेट बनेगा वहाँ पे, एजुकेशन कल्चर एंड नॉलेज डिप्लोमेसी थ्रू वल्लूर सेंटर. तमिल बहुत सारे हैं वहाँ पे, राइट? तो उनसे काफी उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, तो इसलिए ये सेंटर बनाया जाएगा. स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी. वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट. हेल्थ एंड मेडिसिन कॉर्पोरेशन, आयुर्वेद ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंटी करप्शन, यूएन पीस कीपिंग कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक बिजनेस एंगेजमेंट. एंड तो इसके लिए काफी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है. ये सब क्लब कर दिया गया है कि इकोनॉमिक में क्या हमें फायदे होंगे, स्ट्रेटेजिक क्या है, डिप्लोमेटिक क्या है, और सॉफ्ट पावर हमारी क्या है. ओके, बिफोर वी वाइंड अप एक क्विकली ये देख लेते हैं कनाडा के पीएम जो आने वाले हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. तो ये कनाडा है, ये ईयू है जो हरा हो चुका है, कनाडा अभी ऑरेंज है और यूएस अभी ग्रे की. कनाडा क्यों हरा है? तो वी डिस्कस, राइट? वी डिस्कस दैट कनाडा has been at the receiving end of the US and they don't like it, so they would want to diversify. ये फर्स्ट मेजर बायलैटरल विजिट है आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस, और इसमें मल्टीपल हाई वैल्यू एग्रीमेंट वगैरह की बात की जाएगी, और रिवाइवल ऑफ इंडिया कनाडा ट्रेड नेगोशिएशन. ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन हो रखा है, ये तो हमने पढ़ लिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया ये भी पढ़ लिया है. Canada is pursuing trade diversification to reduce over dependence on US, build economic resilience. इंडिया जो है काफी बड़ा फास्ट ग्रोइंग मार्केट है और रिलायबल मिडिल पावर पार्टनर. मिडिल पावर एज आई सेड, बाकी की जो मिडिल पावर हब फॉर एनर्जी डिमांड टेक्नोलॉजी रीसेट हो रहा है. पहले हमारा स्ट्रेन था पॉलिटिकल डिफरेंसेस, एलिगेशन और सिख सेपरेटिज्म. कार्नी गवर्नमेंट ने आके इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल चीजों की बात की और ये सब चीजें कर रहे हैं. यूरेनियम ये इंपॉर्टेंट चीज है. 10-year यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट वर्थ कैनेडियन डॉलर 2 बिलियन, राइट? इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट. एनर्जी कॉर्पोरेशन, वहां से भी ऑयल एंड गैस आ सकता है, राइट? रिलायबल एनर्जी सप्लाई. इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिफाइंग एनर्जी इंपोर्ट रिसोर्सेज. क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, हर आदमी इसी की बात करता है, राइट? ये जो कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी. तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस है.
एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, AI में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एडवांस रिसर्च, ये सब, एजुकेशन कल्चरल एक्सचेंज होंगे। ये सब तो वैसे बातें होती हैं अभी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट, ऑल दैट। Reduction of tariffs and easier market access boost to Indian IT and service export Canadian and तो इंडिया को ये सब चीजें मिलेंगी इससे। That's it. Broader global implication. Okay. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली इंडिया में अगले हफ्ते में दिल्ली में। What is that? It's a global event. So AI summit. Yes, correct. तो ग्लोबल AI समिट हो रहा है हफ्ते भर का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट। तो ये तो अभी आगे चलते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया दिस अ ग्लोबल समिट, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया की, और उसमें वो करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या उसमें कैसे बायसेस वगैरह प्रिवेंट किए जाए, कैसे उसको डेट्रीमेंटल ना हो, और क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए, किस किस चीजों में यूज किया जाए उसको, ये सब चीजें डिस्कस होंगी। सो दैट विल बी समथिंग दैट यू शुड कीप ट्रैक ऑफ। और क्या होने वाला है, बस यही है, यही चीजें होने वाली है। Okay, any questions before we wind up? देखो एक चीज और मुझे मतलब आपको बतानी है, जो लोग वर्किंग है, तो अपनी जो कंपनी है ना, तो कंपनी में आपको उसका पूरा कच्चा चिट्ठा पता होना चाहिए कि वो कंपनी आपकी व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ओके, वेदर इट इज सपोज इंडिया में 100% ओन सब्सिडी है, या इट इज लाइक ए जॉइंट वेंचर, राइट, या फिर बताओ MNC है तो कहाँ बेस्ड है और क्या स्टेटस है उसका। इंडियन कंपनी है तो क्या है, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब इसी ग्रुप में बहुत सारी कंपनी, से फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट, और टाटा मोटर्स, और टाटा पावर, और टाटा केमिकल्स, और टाटा कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर गुड्स। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें टाटा की सैकड़ों कंपनियां हैं, तो देर इज द होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स। तो आपको पता होना चाहिए टाटा सन्स क्या, तो जैसे एन चंद्रा जो है, एन चंद्रशेखरन, इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। इसके पहले सीरस मिस्त्री थे, और उनका थोड़ा सा जमीन ही तो उनको निकाल दिया, एंड देन ही डाइड इन कार एक्सीडेंट। तो टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी। जो लोग जो लोग जनरल मैनेजमेंट में जाते हैं, टास सुना होगा अपन, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो आप लोग किसी टाटा की एक कंपनी में नहीं एम्प्लॉयड हो, आपको एज अ स्पेशल एम्प्लॉय भेजा जाता है कि आप जाके वो कंपनी में प्रोजेक्ट, ये चैलेंज चल रहा है तो वहां पे जाके उसको सुधारिए। फिर आप वापस मतलब टाटा मोटर्स में अगर कुछ चल रहा है तो वहां भेज देंगे, फिर टाटा पावर में कुछ हो रहा है तो वहां भेज देंगे। तो दैट्स अ वेरी हाई लेवल काइंड ऑफ अ रोल, राइट। उससे आपकी जो मतलब लीडरशिप कैपेबिलिटी है वो शाइन करती है। तो बहुत सारे लोग दे आर वेरी ईगर टू गेट इनटू टैक्स, राइट, XLRI में भी जाते हैं, उसमें IIMs में भी जाते हैं। दो आर वेरी पावरफुल रोल्स। तो इस तरह से आप जिस भी कंपनी का पार्ट है, राइट, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ वेल्स फार्गो, और यू आर अ पार्ट ऑफ BOD कंसल्टिंग, or you're a part of Amazon, you should know, the like where does your division fit in the whole scheme of the organization, right? What kind of contribution it makes to the overall revenue, profitability? How does it uh, how does it pan up? Right? कैसे वो ऊपर रोलिंग करती है बाकी डिविजन्स में, ओवरऑल क्या क्या है। जैसे अब आप Amazon में काम कर रहे हैं, तो Amazon में आप AWS में है, Amazon वेब सर्विस, वेयर यू आर working with the data center and Amazon infrastructure वाली यूनिट। Somebody could be working in the Amazon e-commerce thing। तो कैसे लिंक है, क्या है, किस किस की लीडरशिप में कौन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक? तो जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सब चीजें रिव्यू करो। और दूसरा जो है, इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से तो हम रिव्यू कर ही रहे हैं, ओके। All right, any other questions? I hope that you all are going through the transcripts that are being shared on the Telegram channel on a regular basis, है ना। हर दिन हम 3-4, 2-3-4-5 ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते हैं। जो लोग people who are gracious enough to share detailed transcripts, I'm extremely thankful to you, and I hope you continue the good work. Those who are still not doing it, I would request you
in the interest of everybody else and yourself also, because many times if we go through our previous transcripts, then we'll realize certain gaps, or we may be able to fulfill them better. कि हाँ यार, वो वाले इंटरव्यू में हमसे ये पूछा था, हमें नहीं आया था, तो कौन से हमारे उसमें चिंक्स इन द आर्मर हैं, तो उसको कैसे फिल किया जाए ना। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्ट बनाना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने खुद के लिए। तो उसको बनाना कृपया जारी रखें। हाउ मेनी ऑफ यू, या क्वेश्चन इज, कितने लोग देखते हैं रोज? और जरूरी नहीं कि उन कॉलेज की ही देखें जिसमें आपका इंटरव्यू है। मतलब सपोज करो मैंने आया उदयपुर की शेयर की है, तो ये नहीं है कि जो लोग बोले अरे ये तो आया उदयपुर की यार, इसको क्या देखना, अरे ये तो बैंगलोर की है यार, इसको क्या देखना, मेरे को बैंगलोर से तो कॉल आया ही नहीं, अरे ये तो एसपी जैन की है, इसको क्या देखना। ये गलत तरीका है। ओके, बिकॉज टुमारो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, आई मीन सॉरी, टुडे इट वाज आस्क्ड इन आई एम बैंगलोर, टुमारो इट वुड बी आस्क्ड इन एनी अदर इंटरव्यू। क्वेश्चन तो वही सभी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकते हैं, बट देयर आर, आई मीन मोर देन 90% ऑफ क्वेश्चंस आर पोर्टेबल, दैट मीन दे कैन बी टेकन फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू द अदर। तो आपको इसमें you should go through all the new transcripts that get added every day, and then try to figure out कि आपको उनमें से क्या चीजें नहीं आती हैं। आपको अगर पूछा जाता तो आप उसमें से क्या जवाब देते, राइट। वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी जैसे पिछले हफ्ते भी किया था एक सेशन, फिर करेंगे, कल कर लेंगे शायद, कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी को नहीं आए हैं या आए हैं तो उसको कैसे जवाब देना था, बेटर कैसे जवाब दे सकते हैं। ऑल दोस थिंग्स विल आल्सो गिव टेक्निक, बट इट इज अप टू यू टू आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ओके, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलो, ऑल राइट, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू,